ओके भाई साहब, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। देखो फोटोन फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, फोटोन फ्लक्स इज बेसिकली, so bacha party, photon flux is nothing but the number of photons incident normally on a surface per second per unit area. ठीक है, per second per unit area मतलब हो गया आपका पावर, और ये हो गया आपका E. so this will be P lambda by hc, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, E लैम E की वैल्यू होती है भाई साहब hc by lambda। तो P by E हो जाएगा पावर अपॉन energy, power upon energy, that will be P lambda by hc. Let A be the area of the surface and photons incident normally on the surface, then photon flux will be how much? This will be equal to N by A, that is P lambda by AHC. Now P refers to the power of the source, that is energy incident on the surface per unit time. Thus P by A will be the intensity of the source as it refers energy crossing per unit area perpendicular to direction of propagation. तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, N by A, that is P lambda by AHC, जिसको अपन I by E भी लिख सकते हैं। ठीक है, I by E भी लिख सकते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कर्नल्स क्या होता है भाई साहब, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल, कहीं भी भाई साहब ये मूव कर सकते हैं विद इन द मटेरियल। ठीक है, we may think that if the electrons can move freely inside the material, then it is also possible that these electrons can come out of the material by their own। ये हमने कर चुका था ना। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वर्क फंक्शन, ओके, सो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन, और वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। सो वर्क फंक्शन इज व्हाट, द मिनिमम एनर्जी of incident radiation, the minimum energy of incident radiation required to required to initiate photoelectric emission from a metal surface, so the minimum amount of energy that is required for the incident radiation to emit photoelectric emission from a metal surface is known as work function। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे वर्क फंक्शन। thermoionic emission, what is thermoionic emission? By suitably heating, sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। अगर अपन ने भाई साहब देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे आपने भाई साहब कोई इंसिडेंट रे को डाला तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाई आर वी कॉलिंग इट दिस एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? बिकॉज हियर यू आर यूजिंग लाइट, फोटॉन्स को यूज कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? ठीक है, दूसरा तरीका है कि भाई साहब आप इसको हीट करें, हीट करने से भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फ्रॉम अ मेटल सरफेस, because at the end of the day what is happening is that electrons are gaining energy because of which they are breaking out of the metal surface, so this is known as thermoionic emission। by suitably heating, sufficient thermal energy जब आपने प्रोवाइड कर दी है can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the main। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, एक हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक हो गया आपका थर्मोआयनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज initiated by making light of a particular wavelength which has to be minimum of threshold wavelength incident on the metal surface, and thermoionic emission is possible by heating the metal to a certain energy। ठीक है, so by applying very strong electrical field of the order of 10 raised to 8 volt meter to a metal, electrons can be pulled out of the metal। electrons को हम metal से pull out कर सकते हैं। what is photoelectric emission? when light of suitable frequency illuminates a metal surface, free electrons are emitted from the metal surface, this is known as photoelectric emission। this is known as photoelectric emission। these photo lights generated electrons are called as photoelectrons, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपका समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपका एमिटर है और ये आपका कलेक्टर है। तो आपने भाई साहब देखो यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराया है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव डन इज यू आर मेकिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। ये आपका एक फोटो सेंसिटिव प्लेट सी है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, द कैथोड विच इज ऑल्सो नोन एज द एमिटर, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एमिटर। दिस इज नोन एज द एमिटर। ठीक है, यहाँ पे आपका कैथोड लगा हुआ है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फ्रॉम विच इट गेट्स एक्सिलेटेड टुवर्ड्स द एनोड। तो एक्सिलेट होके कहां पे जा रहे हैं भाई साहब, एनोड की तरफ जा रहे हैं।
दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द कलेक्टर। यहाँ पे भाई साहब ये कलेक्ट हो रहे, दे आर गेटिंग कलेक्टेड हियर। समझ में आ रहा है भाई साहब? क्यों ये इधर ही जाएंगे, इधर इधर चितर बितर क्यों नहीं होंगे? क्यों? आपने यहाँ पे एक कैथोड रखा है, कैथोड मतलब क्या हो जाएगा, आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे, कैथोड मतलब क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपका भाई साहब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों सिलेक्ट किया है, ताकि इलेक्ट्रॉन एमिशन ज्यादा हो। कैथोड करने का मतलब क्या है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपने कैथोड मतलब नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया। अभी जैसे ही भाई साहब आप इस पे क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली मेकिंग लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट, what will happen, electrons will be emitted and these electrons will be connected at the anode, ठीक है। so light of a particular intensity, ये आप देखेंगे कि कौन सा इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर मेटल के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी जिसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो नोन एज threshold frequency. When light of a suitable frequency, which is also known as a threshold frequency, falls on a photosensitive plate C, ये आपका photosensitive plate है C, the cathode, which is also known as the emitter, इससे भाई साहब emit हो रही है, ठीक है, the photoelectrons are emitted from it, which gets accelerated towards the anode. तो ये photo electrons emit होके कहाँ पे जा रहे हैं भाई साहब, एनोड की तरफ, ठीक है, acceleration cause हो रहा है भाई साहब, ठीक है, also known as the collector. These electrons flow in the outer circuit, resulting in photoelectric current. ये भाई साहब आउटर सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, अभी देखो आउटर सर्किट मतलब ये वाला सर्किट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से और ये एनोड की तरफ क्यों जा रही हैं, क्योंकि एनोड बेसिकली पॉजिटिव पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल कलेक्ट एट द एनोड, और एनोड में जब जमा होंगे तो क्या होंगे, वो बेसिकली सर्किट में फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ करंट व्हिच इज जनरेटेड, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज करंट व्हिच इज जनरेटेड। ड्यू टू दिस द माइक्रो एमिटर शोज अ डिफ्लेक्शन एंड इट मेजर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। माइक्रो एमिटर मतलब बहुत कम करंट जो मेजर कर पाए, ठीक है। सो इट विल शो अ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे सी हमारा कैथोड हो गया एमिटर एंड ए हमारा एनोड हो गया कलेक्टर, एमिटर एंड कलेक्टर। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके ओके ओके। The experimental observation, above a particular wavelength no photo current is produced even at higher intensity. एक particular wavelength के beyond, ठीक है, above a particular wavelength, ठीक है, no photo current is produced, ठीक है, ये आपका threshold wavelength है। इससे ज्यादा का wavelength यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा ना भाई साहब। C होता है क्या, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, C बाई फ्रीक्वेंसी। तो या आप भाई साहब ऐसा कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा को बढ़ाएंगे आप फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी ना, और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप आ गए, मतलब आपका भाई साहब ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी भाई साहब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे आ गई तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल बी हैपनिंग, ठीक है। लैम्डा को कम करेंगे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे in order to reach your threshold wavelength or threshold frequency. लैम्डा को हमको कम करना है, जैसे जैसे हम लैम्डा को कम करेंगे, वेवलेंथ को जैसे जैसे कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। मतलब by reducing the wavelength we will be reaching closer to the threshold wavelength which is required, and by increasing the frequency we will be reaching the threshold frequency which is required for the photoelectric emission. क्या ये समझ में आ रहा है? और दोनों ही प्रोसेस एक साथ हैं। अगर लैम्डा को आपने बढ़ाने की कोशिश की तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा, मतलब यू विल बी मूविंग वे बियॉन्ड योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अबव अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब अगर आपने लैम्डा को बढ़ाया, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इवन एट हायर इंटेंसिटी। इस लाइट की इंटेंसिटी को चाहे जितना भी बढ़ा दो, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या इंपैक्ट होता है, ऐ भाग्यश्री, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या इंपैक्ट होता है, दिव्या जल्दी जल्दी। इंसिडेंट रे के इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी इमिटेड विल बी मोर, ज्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो ज्यादा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इमिटेड विल बी मोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी जस्ट इंश्योर्स मोर फोटॉन्स and more photons ensures more collision with the electrons and more collision ensures more electrons that are produced, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ को आपने भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, विच इज वे द फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन the threshold frequency, or the wavelength is more than the threshold wavelength, then even after increasing the intensity, you are not going to witness any photoelectric effect. Are we clear? Okay. Below a particular wavelength, photo current is produced even at lower intensity. अगर आप भाई साहब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे आ गए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के नीचे आ गए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा। आपने अगर लाइट की इंटेंसिटी कम भी रख दी तो भी आपको एमिटर में फोटो करंट का भाई साहब सिग्नल मिल जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो इंटेंसिटी हियर मैटर्स, बट इंटेंसिटी विल मैटर ओनली व्हेन यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट को अगर आपने मीट किया है तो ही जाकर ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, emission of photoelectrons from the metal surface when light of suitable wavelength falls on it is called photoelectric effect। ठीक है, तो आइंस्टाइन का ऑब्जर्वेशन भाई साहब क्या था? व्हाट वाज आइंस्टाइन्स ऑब्जर्वेशन? देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोटो करंट वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वाज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फोटो करेंसी तभी होगा जब आपका भाई साहब क्या होगा? जब आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर भाई साहब? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फट से होगा भाई साहब, ऐसा नहीं कि अच्छा आओ एनर्जी तुम्हें अब्सॉर्ब करें फिर जाके हम निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तब से आया और तब से निकला, मतलब जैसे आप कैरम खेलते हैं वैसा है। इंस्टेंटेनियसली द मोमेंट यू are making light of a certain wavelength or frequency incident or more than that, you will see emission of electron. It's an instantaneous effect. Okay, there is no time lag between the incidence of light and the emission of electrons. The maximum kinetic energy भाई साहब क्या हो जाएगा? Kinetic energy maximum will be equal to energy minus phi. ये phi भाई साहब आपका क्या है? वर्क फंक्शन। ठीक है, h v naught is the work function of the material। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? अभी देखो एनर्जी कितनी है? एनर्जी किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी होगा एच वी नॉट, एच वी, और वर्क फंक्शन का भाई साहब कितना होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी नॉट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी हो गया एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। इसमें से एच को भाई साहब कॉमन निकाल लेते हैं तो वी माइनस वी नॉट, this will be kinetic energy। Clear? Are we clear to this one people? Okay. Threshold wavelength, if the photoelectric effect has to take place, then the energy of photon must be greater than the work function of the metal। तो एनर्जी जो आप कर रहे हैं, एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। ठीक है, ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब h into frequency of incident radiation, Planck's constant into frequency of incident radiation has to be greater than Planck's constant into threshold frequency of the। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी भाई साहब इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? एच सी बाई लैम्डा, ये हो गया एनर्जी, शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब? अगर हमने लैम्डा को इधर ले लिया, ठीक है, दिस शुड बी एच सी बाई 5। ठीक है, तो लैम्डा हैज टू बी लेसर देन इक्वल टू एच सी बाई 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? लैम्डा हैज टू बी, सिंपल है भाई साहब। ठीक है, देयर इज नो हार्डकोर साइंस इन्वॉल्व हियर। वी नो दैट आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, तो h इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन की जगह पे एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक। तो देखो जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के लाइट से आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। और जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर इससे ज्यादा में आप चले गए तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अगर ज्यादा वेवलेंथ लाइट आपने यूज किया है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भाई साहब नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के से अगर कम आपने यूज किया है फ्रीक्वेंसी,
तो भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वेवलेंथ की बात करेंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, है ना? ठीक है, ओके। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन above which photoelectric emission is not possible is known as threshold wavelength. Therefore, the equation 1 we can write lambda naught is equal to hc by phi. At threshold wavelength for lambda is equal to lambda 0, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो जाए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, एंड फॉर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा जीरो, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन वुड नॉट टेक प्लेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर लैम्डा की वैल्यू भाई साहब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गई तो एमिशन नहीं होगा, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। ठीक है, इफ इंसिडेंट रेडिएशन का लैम्डा है भाई साहब और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गया तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अगर इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई साहब, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भाई साहब नहीं होगा। समझम समझम समझम, बहुत है, बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम। If the photoelectric effect has to take place, the energy of the photon must be greater than the work function of the metal. Energy of the photon by some work function से ज्यादा होना चाहिए। Thus, in terms of frequency, the required condition of photoelectric effect becomes V is greater than भाई साहब आपका phi, तो V की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? phi by h, phi by h। तो we know that lambda नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? hc by phi। ठीक है, तो आपकी लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? लैम्डा नॉट की वैल्यू समझ में आ रही है यहाँ पे? लैम्डा नॉट इज व्हाट भाई साहब? यहाँ पे वर्क फंक्शन है ना, ये दिस इज बेसिकली वर्क फंक्शन। ठीक है, सो एच सी बाई फाइव, देखो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन हो जाएगा आपका ई नॉट दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो अगर हम भाई साहब बात कर रहे हैं सी बाई लैम्डा नॉट की, तो ये हो जाएगा फाइव बाई एच। ठीक है, सी बाई लैम्डा नॉट, और सी बाई लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी नॉट, तो फ्रीक्वेंसी नॉट विल बी इक्वल टू फाइव बाई एच, दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया भाई साहब सिग्नल। ठीक है, threshold frequency, the minimum frequency of the incident radiation below which photoelectric emission is not possible is known as threshold frequency. Therefore, from the equation we can write that भाई साहब आपका जो incident radiation है उसका frequency more than or equal to threshold frequency होगा, तभी photoelectric emission भाई साहब आपकी चालू होगी। और ये भाई साहब minimum frequency की वैल्यू क्या हो जाएगी? That will be work function upon h. Are we clear to this one people? समझ में आता? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। We know that the maximum kinetic energy of one ejected electron, एक ejected electron, the maximum kinetic energy will be equal to hv minus hv naught। ठीक है, thus the electrons will be ejected only if frequency is greater than v naught। ठीक है, otherwise kinetic energy of the ejected electron will be negative, which is impossible। ठीक है, ये हो नहीं सकता भाई साहब। देखो समझो समझो इस चीज को, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर ये आपका इससे लेस हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों बताएंगी नंदिनी जी? काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? भागी से फोटोन का क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे नेगेटिव? अरे भाई साहब, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? इंसिडेंट रे का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अगर आपका इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा ये। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका नेगेटिव होगा, और ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई साहब सिंपल आओ ना, एकदम बेसिक्स पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाफ तो नेगेटिव नहीं हो सकता। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुई भी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए आपका काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर काइनेटिक एनर्जी आपका नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट नहीं होंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी। ठीक है, बट इट विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सो दस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड ओनली, जो हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन तभी होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी उनके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी नहीं।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी भाई साहब, ठीक है। ओके, सो अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव व्हिच इज इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन का तो छोड़ दो, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कभी भी भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन, अभी अगर भाई साहब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, यहाँ पे आपका भाई साहब ये हो गया स्लोप, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो आपका फंक्शन हो गया, ये आपका वर्क फंक्शन हो गया, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच वी नॉट, ठीक है। ये आपका v का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब, फंक्शन ज्यादा, तो आपका ये हो गया स्लोप, ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्लोप। y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, वी कैन से दैट द ग्राफ विल बी स्लोप, तो आपका h हो गया, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, h v नॉट, यहाँ पे आपका v नॉट से अगर नीचे हुआ तो हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट तभी होगा जब आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अचीव किया होगा विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी भाई साहब होगी नहीं, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया, दिस इज बेसिकली योर स्लोप, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो आप देखो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं अपन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y हो गया, और ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे जो आता है देखो ग्राफ ऐसे, और ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। सो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप क्यों है भाई साहब, क्योंकि आपका ये वाला जो थीटा है वो लेस देन 90 है, और tan थीटा की वैल्यू, स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू जब तक भाई साहब 0 से 90 तक हो तो आपका tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये आपका भाई साहब पॉजिटिव है, ठीक है, अक्यूट एंगल के लिए। द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा h, द इंटरसेप्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस विल गिव यू द वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन भाई साहब वर्टिकल ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन द ये वाले इस एक्सिस पे, इस पे जो इंटरसेप्ट है जहां पे कट रहा है वही आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा, वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है, thus giving the work function for the concerned material। ओके ओके ओके, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा ग्राफ, अभी हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ किया था, अभी हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा में क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 बाय लैम्डा, सॉरी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, तो मतलब यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू किससे कम हो गई भाई साहब, लैम्डा नॉट से, तो यहाँ आपका भाई साहब वर्क फंक्शन क्या है, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये वाला आपका वर्क फंक्शन है, ये आपका मिनिमम एनर्जी है दैट यू रिक्वायर। तो आपने काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ प्लॉट किया भाई साहब, 1 बाय लैम्डा के साथ प्लॉट किया, so this is what you get, ठीक है। this is the minimum amount of energy that is required, that is hc by lambda naught, ठीक है। so kinetic energy maximum क्या हो जाएगा, e minus phi which is work function, that is hc by lambda for e minus hc by lambda naught which is work function, ठीक है, क्लियर है भाई। वही चीजें देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हम लिखते हैं ना, that is h into frequency minus h into frequency naught, उसी का भाई साहब रूपांतरण है hc by lambda minus hc by lambda naught, ठीक है। thus electrons will be ejected only if 1 by lambda is greater than 1 by lambda naught, electrons will be ejected only, ये तभी इजेक्ट होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और पॉजिटिव होने के लिए भाई साहब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी आपकी भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकती है, और पॉजिटिव होने के लिए 1 बाई लैम्डा की वैल्यू भाई साहब 1 बाई लैम्डा नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए भाई साहब, लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे तो आपका वेवलेंथ उससे कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब यहां पे देखो आपका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये लैम्डा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी आप वेवलेंथ को कम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ चलेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ नहीं चलेगा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चलेगी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगी। तो लेट्स से इफ यू वे टू आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, लेट्स से भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी, अगर आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भाई साहब होगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से ज्यादा है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से कम है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, बिकॉज भाई साहब आपका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और अपन बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, सो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब x इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा और m इज इक्वल टू एस सी,
और भाई साहब b इज इक्वल टू, तो आप देखो यहाँ पे कंपेयरिंग द इक्वेशन, ठीक है, विद इक्वेशन ऑफ mx प्लस b, अगर mx प्लस b तो आपका mx प्लस b में यहाँ पे भाई साहब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई लैम्डा, है ना, x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 बाई लैम्डा, m की वैल्यू हो गई भाई साहब hc, m की वैल्यू हो गई hc और b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब माइनस hc बाई लैम्डा, ठीक है, तो ये जो आपका माइनस hc बाई लैम्डा है, दिस इज बेसिकली द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, द इंटरसेप्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस विल गिव अस द वर्क फंक्शन दैट इज hc बाई लैम्डा नॉट। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल है, when the light of frequency 2f naught where f naught is the threshold frequency, भाई साहब कहीं पे आपका फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख के आ सकता है, कहीं पे ऐसे लिख के आ सकता है, कहीं पे ऐसे भी लिख के आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2f naught, ठीक है, is incident on a metal plate, the maximum velocity of the electrons emitted is v1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलिए बोलिए, half m v1 का स्क्वायर where m is the mass of an electron, m is the mass of an electron, when the frequency of the incident radiation is increased to 5 f naught, the maximum velocity of the electrons emitted is v2, the ratio of v1 to v2 कितना हो जाएगा, ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये कितना होता है भाई साहब h, नहीं c बाई लैम्डा नहीं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है, माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या अपन बोल सकते हैं भाई साहब वर्क फंक्शन, ठीक है, तो अपन इसको अगर बोलते हैं भाई साहब यहाँ पे कितना है 2, तो 2 एच एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एफ नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एफ नॉट लिखा हुआ है, वी नॉट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एच इंटू टू एफ नॉट माइनस एच इंटू एफ नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ नॉट, क्या ये समझ में आ रहा है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम v2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, एफ नॉट की वैल्यू हो गई 5 एच एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट, तो ये हो गया आपका 4 एच एफ नॉट और ये हो गया आपका हाफ एम v2 का स्क्वायर। अभी अगर हमने भाई साहब इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 एच एफ नॉट अपॉन हाफ एम v1 का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 5 सॉरी एच एफ नॉट, ठीक है, ये भाई साहब कैंसिल 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 और ये कैंसिल, एच और एच भी कैंसिल, तो v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अपन लिख सकते हैं v2 बाई v1 इज इक्वल टू 2, तो v2 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या है v1 इज टू v2 निकालना है ना, तो v1 इज टू v2 करेंगे तो 1 इज टू 2 हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1 is to 2, this will be the correct answer, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, ओके, सो मैटर इन रेडिएशन, तो हमने भाई साहब क्या क्या देख लिया भाई साहब, द वेव थियरी ऑफ लाइट फटाफट से देख लेते हैं, द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन, इन सब चीजों से भाई साहब हमारा वेव थियरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है, सो यहाँ पे हम वेव थियरी से इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब तक पार्टिकल नहीं होगा तब तक वो किसी पार्टिकल को मेटल से निकालेगा नहीं, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, सो यू डेफिनेटली वुड रिक्वायर फोटॉन्स व्हिच आर पार्टिकल्स टू एमिट पार्टिकल्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, so light as a particle, if light is considered as a wave, there should be sufficient time gap between light incident on a material and the electron gets ejected from that surface, but experimentally it is observed that electron ejection process is instantaneous, ठीक है, ये भाई साहब ताबड़तोड़ है, जैसे ही आपने इंसिडेंट रेडिएशन को किया ताबड़तोड़ आपको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता हुआ दिखेगा, experimentally it has also been observed that above a particular wavelength or below a particular frequency no electron is ejected even when the intensity of light is very high, तो इंटेंसिटी को ऊपर नीचे करने के बावजूद भी कोई असर आपको, अगर हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईदर द फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इफ दीज आर नॉट मेट, no matter whatever you are keeping the intensity, you are not going to see photoelectric emission at all, because intensity is just going to alter the number of electrons that are emitted, but electrons will be emitted only if you happen to meet up the bare minimum conditions of frequency, that is threshold frequency, और maximum condition of wavelength, that is threshold wavelength, ठीक है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, भाई साहब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन हमने देखा भाई साहब, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटा,
तो सारा भाई साहब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पैकेट्स है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. इन द केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ये भाई साहब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है. फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम. photons always travel with the speed of light. ये भाई साहब हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं इन वैक्यूम. एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h into frequency और hc by lambda. ठीक है. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है भाई साहब, अगर हम जूल्स पर सेकंड में ले रहे हैं तो 6.6 ही ले लेते हैं ज्यादा करके, 6.6 into 10 raised to minus 34. और अगर इसमें ले रहे हैं तो 4.14 into 10 raised to minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड. ठीक है. मोमेंटम ऑफ अ फोटोन भाई साहब हो जाएगा क्या, E बाई सी. E हो गया उसका एनर्जी और C हो गया भाई साहब वेलोसिटी. ठीक है. C हो गया उसका वेलोसिटी, दैट विल बी h बाई लैम्डा. रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0. ठीक है. एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज ऑलवेज कंजर्व. ये सब कुछ चीजें हमने देखी भाई साहब. थर्मो आयनिक एमिशन बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी. तो हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भाई साहब बाय यूजिंग लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को लाइट को यूज करते हुए हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखा. इसी तरह से जब हमने थर्मो आयनिक एमिशन किया, मतलब हमने थर्मल एनर्जी को यूज किया, तो भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखा. फील्ड एमिशन बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल. तो हमने देखा भाई साहब अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, स्टिल वी कैन पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल. फोटो एमिशन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. ठीक है. There exists a certain minimum frequency below which no emission of photoelectrons takes place. This minimum frequency is known as threshold frequency or cutoff frequency. इसके नीचे भाई साहब आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. Photo current was observed only if the frequency of the incident radiation was more than the threshold. There is no time lag between, तो ये आपका instantaneous है. Kinetic energy maximum will be equal to energy of the incident variation minus आपका वर्क फंक्शन. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, एमिशन विल नॉट टेक प्लेस. मतलब आपका इंसिडेंट रेडिएशन का अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है तो भाई साहब आपका नहीं होगा ये. ठीक है. ओके. तो आपका थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन above which photoelectric emission is not possible. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा मिनिमम होगी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमेशा मैक्सिमम होगा. ठीक है. ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिटवीन व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इज नॉट पॉसिबल. ये सारे कुछ फॉर्मूलेस देखे हमने भाई साहब. यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस 1 बाय लैम्डा का ग्राफ. ठीक है. ओके. अभी हम भाई साहब देख रहे हैं कि इंटेंसिटी से क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं वो बढ़ते हैं. ठीक है. So once we have achieved the conditions of threshold wavelength or threshold frequency, ठीक है, we will see emissions happening. ठीक है. तो वेव थियरी क्या बोलता है, the intensity of light falling on a falling on a metal is increased by increasing the amplitude. तो हमने देखा कि भाई साहब इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट falling on a metal is increased by increasing the amplitude of electric field associated with the light wave. तो अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ता है. ड्यू टू विच फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीज. तो हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया भाई साहब, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. ओके. पार्टिकल थियरी क्या बोलता है भाई साहब, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तो वेव थियरी बोलता है भाई साहब इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो इंक्रीज. इसीलिए आपका वेव थियरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं करता है. ठीक है. क्योंकि एज पर वेव थियरी अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वो एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा भाई साहब, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एमिट करवाएगा. ठीक है. क्योंकि हम जब लाइट के वेव थियरी को पढ़ते हैं तो ईएम थियरी है ना भाई साहब, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी है जो आपस में परपेंडिकुलर है. बट लाइट के वेव थियरी में वी आर जनरली टेकिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है. तो अगर ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है. इसीलिए वेव थियरी को अगर हम मानकर चलें
तो इट डजंट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कन्विंसिंग नहीं प्रूव नहीं करता है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जस्ट रिलेटेड टू आपका मैटर थियरी या पार्टिकल थियरी, ठीक है। तो ड्यू टू विच फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज। अगर भाई साहब आपका इंटेंसिटी लाइट का बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। और अगर एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब इंटेंसिटी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज व्हिच विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर बढ़ रहा है तो वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब बावजूद हम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते भी हैं वी डोंट सी, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टिकल थियरी से अगर हम देखें, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू E-5, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ये हो गया आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। वेव थियरी है भाई साहब, द फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। वेव थियरी में भाई साहब फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट प्रोवाइडेड दैट द लाइट इज इंटेंस एनफ टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिर्फ वेव थियरी को मानकर चले तो भाई साहब कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो लाइट की, अगर आप इसको इंसिडेंट कराएंगे तो ये वेव होकर आएगा और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये सब मैटर ही नहीं करते, ठीक है। सो लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल बी एबल टू ensure that electrons are emitted if we are just considering the wave theory of light, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है, light has to be of a minimum frequency or a maximum wavelength which are respectively known as threshold frequency or threshold wavelength in order for photoelectric emission to take place, ठीक है। सो ये भाई साहब फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए वेव थियरी वैलिड हो जाती, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो पार्टिकल थियरी में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी भाई साहब आपकी अगर मिनिमम ये वैल्यू हो तो ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिखेगा, ठीक है। द टाइम डिले प्रॉब्लम, अभी देखो वेव जो आता है वो ऐसे आ रहा है, लेट्स से पार्टिकल आपका वेव नेचर में लाइट एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट एनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मेटल। तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना ऐसे वेव नेचर में, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत टाइम तो लेंगे, एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और फिर जाकर जब उनका एनर्जी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा देन दे विल स्टार्ट इमर्जिंग आउट। लेकिन हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है। द मोमेंट यू मेक लाइट ऑफ threshold frequency or more fall on a metal surface you will see the ejection of electrons happening, so there is no time lag. Particle theory में whole of the energy associated with the photon is absorbed by a free electrons, hence emission is instantaneous. तो इन सारे पॉइंट से ये प्रूव हो रहा है कि हम जितना भी कोशिश कर लें वेव नेचर ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक को एमिशन को एक्सप्लेन करना, इट इज बेसिकली प्रूविंग टू बी इनवैलिड। ये एक इनवैलिड एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, पर्याप्त नहीं होगा। ओके, तो आप देख लो भाई साहब फिनोमिना, जैसे आपका रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से आप किन किन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, ये हमने देखा हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करते हुए भी हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है, और पार्टिकल नेचर से भी ये प्रूव होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेव नेचर as well as particle nature. Interference of light it can be proved by wave nature but it cannot be proved by particle nature. Interference एक ऐसा इकलौता interference हो गया, diffraction हो गया, polarization. Diffraction again it cannot be proved by particle nature. Polarization again it cannot be proved by particle nature. Photoelectric effect it cannot be proved by wave nature but it can be proved by particle nature. ठीक है, so ये सारे तमाम चीजें हैं या फिनोमिना है, कहीं कहीं पे सिर्फ वेव थियरी लग रही है, कहीं कहीं पे सिर्फ पार्टिकल थियरी लग रही है, और कहीं कहीं पे वेव और पार्टिकल दोनों भी थियरीज लग रही है, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होल्ड्स दैट लाइट एंड मैटर एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो आपका भाई साहब वेव का और पार्टिकल का दोनों भी थियरी इसमें लग रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The propagation of energy as a wave can be understood by drawing analogy where water is being sprayed on the flowers in a garden, ठीक है। Here spraying water represents the energy. तो लेट्स से भाई साहब ये स्प्रेइंग वाटर जो है वो एनर्जी है, ठीक है। Where water is being sprayed, here spraying water represents the energy in the form of wave and flowers represent the electrons. तो ये सारे भाई साहब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। Just like here a flower can receive water in any amount. तो यहाँ पे जो फ्लावर्स पे पानी गिर रहा है क्या सब में ही एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ पानी गिरेगा? नहीं, they can receive amount in any amount. The electrons also can get any amount of energy when energy propagates as a wave.
thus the energy distribution यहाँ पे continuous, ठीक है. Similarly, just like each flower receives nearly same amount of water, all the electrons also receive energy uniformly when energy propagates as a wave. Therefore, energy is uniformly भाई साहब distributed. The propagation of energy, ये था भाई साहब आपका propagation of energy as a wave, ठीक है. एनर्जी भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. ओके, अभी हम अगर प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं एज पार्टिकल्स, कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग एनालॉजी वेयर पैकेट्स ऑफ वाटर आर बीइंग थ्रोन ऑन फ्लावर्स. जैसे फोटॉन्स आपके क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. सो नाउ यू आर filling it with packets and they are throwing it on flowers, ठीक है. Here packets of water represent the photons which carry energy and plants represent the electrons. Just like a flower can receive only one packet full of water at a time, an electron can absorb only one photon. Therefore we can say that energy is quantized. तो यहाँ पे भाई साहब एनर्जी आपका क्वांटाइज हो गया. यहाँ पे एनर्जी आपका क्वांटाइज नहीं होगा, पूरा फैल जाएगा, ठीक है. ये वाटर जो है इक्वल अमाउंट में सब प्लांट्स में फैल रहा है, ठीक है. बट यहाँ पे आपका पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आप दे रहे हैं, तो एनर्जी भाई साहब ये एक पैकेट एनर्जी लेगा, ये एक पैकेट वाटर लेगा, ये एक पैकेट वाटर लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So just like a flower can receive only one packet of water at a time, an electron can absorb only one photon. Therefore, we can say that here the energy is quantized. तो यहाँ पे आपका एनर्जी क्या हो गया, क्वांटाइज हो गया. मतलब एनर्जी की वैल्यू 2, 3, 4, 1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है. Similarly, just like the flowers which get the packet are going on receive water, the electrons which absorb the photons are going to receive the energy. Therefore, here the energy is non-uniformly distributed. तो यहाँ पे भाई साहब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली. जिस पैकेट को जहां पे फेंका जाएगा उसको ही एनर्जी मिलेगी, जिस पैकेट को भाई साहब जहां पे फेंका जाएगा उसको ही एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है. जबकि अगर हम वेव थियरी माने तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ एनर्जी से एनर्जी मिल गई तो भाई साहब उसने अपनी वो एमिट हो गया, बस उसको मिलना चाहिए. समझ में आ रहा है. एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है, अगर उसको उतना एनर्जी एक फोटोन से मिल रहा है जिससे कि वो बाहर आ जावे तो भाई साहब हो जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स गए भाड़ में, ठीक है. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. इसके पहले वाले में वेव थियरी में जैसे ही वेव गिरेगा पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. तो इसका मतलब अभी एनर्जी आते 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 टाइम लगेगा, और जब मैक्सिमम एनर्जी में पहुंचेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू होंगे. ऐसा फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं देखा गया है. जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, यू विल सी दैट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एमिटिंग. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट यू आर यूजिंग, ठीक है. तो इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई साहब इक्वल नहीं है. और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कब होता है, जब हम मान लेते हैं कि लाइट इज अ वेव. लाइट अगर वेव है तो ही भाई साहब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, वरना तो हम ऐसे फोटोन के पैकेट्स अगर माने, हर पार्टिकल भाई साहब किस पार्टिकल को या किस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा हमें नहीं मालूम. तो ये वाला किसके ऊपर गिरेगा हमको नहीं मालूम, जिसके ऊपर गिरेगा वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा. समझ में आ रहा है. सो देन वी कैन से दैट लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दीज आर नोन एज क्वांटा, और दीज आर नोन एज क्वांटा, ठीक है. तो ये आपका भाई साहब हम बोल सकते हैं एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड. द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है. ओके, सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट. तो इंटेंसिटी भाई साहब क्या होती है, इंटेंसिटी किसको इंक्रीज करेगी, भाग्यस रे, इंटेंसिटी किसको इंक्रीज करेगी. अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, समझ लो हम भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर चुके हैं और लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. number of photons, so the effect of intensity on light in photoelectrons. When light of suitable frequency obtained from the source falls on the photosensitive plate, the cathode, which is also known as the emitter, the photoelectrons are emitted from it, which gets accelerated towards the anode. तो ये photoelectrons हैं जो भाई साहब एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. they get emitted, also known as the collector plate. These electrons flow in the outer circuit, result in photocurrent. Due to this, the microemitter shows a deflection. तो microemitter में एक deflection देखने को मिलेगा. The reading of microemitter measures the photoelectric current. ये आपको भाई साहब photoelectric current बोलेगा, ठीक है. क्लियर है. Effect of intensity on photocurrent. तो आपका photocurrent हो गया, और ये हो गया भाई साहब आपका intensity. So if you are making light of a certain intensity fall on it, then the number of electrons that are getting emitted per second will increase. यही होगा भाई साहब, ठीक है. As the intensity of light increases, the number of photons incident per second increases, due to which the photoelectrons emitted per second also increases, and hence the photocurrent आपका बढ़ जाएगा, ठीक है. क्योंकि photocurrent होता क्या है, number of electrons per second, number of charges. आपका current क्या होता है,
करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू अगर बढ़ेगा, क्यू कब बढ़ेगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज देन द क्यू विल इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। However, photo current is directly proportional to the intensity of light. फोटो करंट तब ही आएगा जब आपका भाई साहब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस किया हो। समझ में आएगा? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अभी हम पहले हमने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब हमने इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फोटो करंट बढ़ गया। अभी हम अगर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, मतलब कैथोड और एनोड में जो डिफरेंस है उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा भाई साहब? इफ वी सी, देखो यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा, फोटो करंट भाई साहब आपकी इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ यू हैपन टू इंक्रीज द इंटेंसिटी द फोटो करंट विल इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है। ठीक है, when all photo electrons reach plate A the current reaches maximum value which is called saturation current। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब सैचुरेशन करंट, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे क्या है, फोटो करंट को आप किससे करेक्ट कर रहे हैं? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल से। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है भाई साहब, ये आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे आप भाई साहब इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। when all the photo electrons reach plate A, तो आपके भाई साहब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट ए, द करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। भाई साहब जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने थे वो आपके मैक्सिमम विच इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। तो अगर आप यहाँ पे फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, अभी देखो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बढ़ाने मतलब इन दोनों के बीच में आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते करते भाई साहब कहां तक जाएंगे आप? एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बियॉन्ड आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, क्योंकि कैथोड और एनोड तो सेम ही है। ठीक है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं ला रहे। इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक बार आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव कर ली तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे इंटेंसिटी को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ, यहाँ पे बेसिकली जब आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये जो टाइम लैग है, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ वोल्टेज, मतलब जितना आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतनी जल्दी ये यहाँ पे पहुंचेंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनके एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं। इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन भाई साहब बढ़ा बढ़ा कर भी आप कहां तक जाएंगे? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे कि आपने बहुत ज्यादा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल दिया। व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच प्लेट ए द करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट की भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू हो गई विच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यू